کچھ اہم خبریں شامل کرتے ہیں۔ سرگودا میں ٹریفک پولیس کی نااہلی کے سبب شہر اور ملحقہ علاقے میں ٹریفک کا نظام بے ترتیب اور مسائل میں اضافے کا باعث بن رہا ہے۔ شہر کی مصروف سڑکوں اور چوراہوں کو بیریئر لگا کر بند کرنے سے مسائل اور حادثات میں اضافہ۔ ٹریفک سگنلز نہ ہونے سے حالات ابتر، ذمہ داران نے چپ سادھ لی ہے۔ مزید احوال جانتے ہیں ہمارے ڈسٹرکٹ رپورٹر محمد ارسلان تبسم کی اس رپورٹ میں۔ سرگودا میں ٹریفک کے نظام کو ربط و ضبط میں لانے کے لیے ذمہ داران کی طرف سے حالات کے تقاضوں کے مطابق توجہ نہ دینے سے مسائل میں خوفناک اضافہ ہو چکا ہے۔ ٹریفک پولیس اہلکار ڈیوٹی سر انجام دینے کے بجائے دفاتر میں چین کی بانسری بجاتے ہیں۔ شہر کی اہم سڑکوں اور چوراہوں کو بیریئر کے ساتھ خاردار تاریں لگا کر لوگوں کو بلا جواز ستایا جا رہا ہے۔ ٹریفک پولیس کی جانب سے سڑکوں کو بے ترتیب بلاک کرنے کی پالیسی کے سبب لوگوں کو اضافی سفر بھی کرنا پڑتا ہے اور بہت سے مقامات پر ٹریفک اہلکار موجود نہ ہونے کی وجہ سے لوگ ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی کو بھی معمول بنائے ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے حادثات اور جھگڑے بڑھ چکے ہیں، مگر ٹریفک پولیس افسران ان پر توجہ دینے کے لیے تیار نہیں۔ ٹریفک کے حوالے سے یہاں پر انہوں نے نظام نہیں بنایا، نہ یہاں پر پولیس والے کھڑے ہیں، اشارے جو ہیں وہ بند پڑے ہیں۔ یہاں پر ٹریفک کا نظام سرگودے کا سارا درہم برہم ہوا پڑا ہے اس ٹائم۔ یہاں ایک طویل عرصے سے ٹریفک سگنل کا نظام بھی غیر فعال ہے اور ڈویژنل صدر مقام کے کسی ایک بھی چوراہے پر سگنل فنکشنل نہیں، جو کہ بذات خود ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ سول ہاسپٹل کا چونک ہے، ادھر ایمبولینس گھنٹہ گھنٹہ پھنسی رہتی ہے۔ ٹریفک کا نظام اچھا کیا جائے، بہتر کیا جائے۔ وزیر اعلیٰ سے ہماری گزارش ہے کہ وہ یہ نظام بہتر کرے۔ اس حوالے سے عوامی حلقے سراپا احتجاج ہیں اور ان کا مطالبہ ہے کہ ٹریفک پولیس کو خواب غفلت سے بیدار کر کے فرائض کی بجا آوری کے لیے سامنے لایا جائے اور سرگودا میں ٹریفک سگنل کا نظام فعال بنا کر ٹریفک کے نظام کو نظم و ضبط میں لایا جائے۔ شاہینوں کے شہر سرگودا میں بڑھتے ہوئے ٹریفک حادثات اور ٹریفک جام رہنا معمول بن چکا ہے، جبکہ ڈسٹرکٹ انتظامیہ خواب خرگوش کے مزے لینے میں مصروف ہے۔ کیمرہ مین شاہد جیالہ کے ساتھ محمد ارسلان تبسم، NTN نیوز، سرگودا۔ جی بہت شکریہ ارسلان اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ لیا کی تحصیلوں میں بھی تجاوزات کے خلاف گرینڈ آپریشن جاری ہے۔ میونسپل کمیٹی افسران سڑک کناروں سے تشہیری بورڈز ہٹانے میں دن رات مصروف دکھائی دے رہے ہیں۔ لیا سے مہر کامران کی اس رپورٹ میں جانتے ہیں۔ لیا کی تحصیل کروڑا لسن میں بھی تجاوزات کے خلاف بھرپور مہم جاری ہے۔ غیر قانونی تشہیری بورڈ ہٹانے کے لیے تحصیل انتظامیہ و ادارے متحرک ہیں۔ میونسپل کمیٹی افیسر کے مطابق یہ آپریشن شہریوں کی سہولت اور سڑکوں کو کشادہ بنانے کے لیے کیا جا رہا ہے تاکہ ٹریفک کی روانی بہتر ہو سکے اور عوام کو مشکلات کا سامنا نہ ہو۔ میڈم CM صاحبہ کا ایک ویژن ہے کہ جو بھی ہمارے انکروچڈ ہیں، جو بھی ہمارے irregular چیزیں لگی ہوئی ہیں، وہ ساری کی ساری ہم نے ودن اے منتھ کلیئر کرنی ہے۔ اس میں شیڈ بھی ہیں، اس میں تھڑے بھی ہیں، اس میں جو ہمارے پاس یہ پھٹے رکھے ہوتے ہیں وہ سارے ہیں۔ میونسپل کمیٹی کروڑ صبح شام اس کام میں لگی ہوئی ہے۔ ہماری جو لوگ ہیں، جو تاجر برادری ہے، سب سے یہ اپیل ہے کہ ہمارے ساتھ کوآپریٹ کریں، چیزوں کو ریگولر کرنے میں۔ ہمارا اپنا سٹی ہے، اس کو بیوٹیفل کرنے میں اگر لوگ ہمارے ساتھ کوآپریٹ نہیں کر رہے ہیں، اپنے شیڈ، اپنے تھڑے، اپنے بورڈ نہیں اتار رہے ہیں، تو پھر ہم ڈیلی بیسس پہ اس طرح کا آپریشن کریں گے اور جو irregularity ہمیں نظر آئے گی ہم وہ اتارتے جائیں گے۔ ضلعی افسران کا کہنا ہے کہ تجاوزات کے خلاف مہم بلا تفریق جاری رہے گی اور کسی کو بھی قانون ہاتھ میں لینے کی اجازت نہ ہوگی۔ کیمرہ ٹیم کیمرہ مارک کامران 3 NTN نیوز لیا۔ ملک بھر کی طرح میاں والی میں بھی پولیو مہم کا افتتاح کر دیا گیا۔ ڈپٹی کمشنر خالد جاوید گوریا نے بچوں کو قطرے پلا کر 5 روزہ قومی پولیو مہم کا افتتاح کیا۔ میاں والی سے رپورٹ کر رہے ہیں حفیظ اللہ خان نیازی۔ میاں والی میں ڈسٹرکٹ ہیلتھ اتھارٹی کے زیر اہتمام پولیو کی افتتاحی تقریب ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر اسپتال میاں والی میں منعقد ہوئی۔ ڈپٹی کمشنر خالد جاوید گوریا نے فیتا کاٹ کر 5 روزہ پولیو مہم کا باضابطہ افتتاح کیا اور بچوں کو پولیو ویکسین کے حفاظتی قطرے پلائے۔ اس موقع پر ڈپٹی کمشنر کا کہنا تھا کہ والدین اپنے بچوں کو پولیو ویکسین کے 2 قطرے ضرور پلائیں۔ انہوں نے محکمہ صحت کے افسران کو ہدایت کی کہ لوگوں کو پولیو مہم کے متعلق زیادہ سے زیادہ آگاہی فراہم کی جائے۔ اس موقع پر CO ہیلتھ ڈاکٹر محمد رفیق خان کا کہنا تھا کہ اس مہم کے دوران 3,25,000 سے زائد 5 سال تک کی عمر کے بچوں کو پولیو سے بچاؤ کی حفاظتی ویکسین کے قطرے پلائے جائیں گے، جس کے لیے 1404 ٹیمیں فیلڈ میں بچوں کو پولیو ویکسین کے قطرے پلانے میں مصروف عمل ہے۔ کیمرہ مین ماجد اقبال کے ساتھ حفیظ اللہ خان نیازی، NTN نیوز، میاں والی۔ پاکستان کو پولیو فری ملک بنانے کے لیے بھوانہ میں 5 روزہ پولیو مہم جاری ہے۔ پولیو مہم کے دوسرے روز ڈپٹی ڈسٹرکٹ ہیلتھ نے مختلف علاقوں کا دورہ کیا، پولیو ٹیم کی کارکردگی کا جائزہ بھی لیا۔ مزید جانتے ہیں محمد افضل رمانہ سے۔ جی محمد افضل، بتائیے گا۔
جی بالکل، پاکستان کو پولیو فری ملک بنانے کے لیے بونا میں جو ہے وہ 5 روزہ پولیو مہم جاری ہے، جس کا آج دوسرا روز ہے۔ ڈپٹی ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر ڈاکٹر سویب شبیر جو ہے وہ پولیو ٹیموں کی نگرانی کر رہے ہیں۔ آج انہوں نے بونا کے مختلف علاقوں کا وزٹ کیا، پولیو ٹیموں کی کارکردگی کا جائزہ لیا۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں، بات کرتے ہیں۔ سر بتائیے کہ اس والے سے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جیسے آپ کو پتہ ہے کہ پولیو کا آج دوسرا دن ہے اور ہماری 378 ٹیمز گھر گھر جا کے پولیو قطرے پلا رہی ہیں، اور ہماری یہ ٹیم پیچھے موجود ہے۔ ان کا آج دوسرا دن تھا، انہوں نے آج یہ اسکول کور کیا ہے۔ اسکول کے اندر تقریباً 26 تعداد تھی بچوں کی، اور سب کے نشانات بھی آج چیک کیے ہیں، اور الحمدللہ ابھی تک کام بہت اچھا چل رہا ہے، کوئی بچہ میں مس وغیرہ نہیں ملا۔ اور باقی اس کے بعد یہ ٹیم جا کے گھر گھر بھی وزٹ کریں گی۔ تو والدین سے میری یہی بار بار گزارش رہے گی کہ براہ مہربانی اپنے 5 سال سے کم عمر بچوں کو پولیو قطرے پلائیں تاکہ اس مرض سے بچا جا سکے۔ جی آپ نے ڈپٹی ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر ڈاکٹر سویب شبیر کی بات سنی۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ میں والدین سے اپیل کرتا ہوں پولیو ٹیموں کے ساتھ تعاون کریں تاکہ پاکستان کو پولیو فری ملک بنایا جا سکے۔ جی ادھر تھانہ صدر وہاڑی کی حدود میں مبینہ پولیس مقابلہ، ایک ملزم ہلاک۔ تھانہ ٹھینگی کی حدود میں دوران واردات شہری کو قتل کرنے والے 2 ڈاکوؤں کو پولیس نے گزشتہ رات زخمی حالت میں گرفتار کر لیا ہے۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں اپنے نمائندے مصدق چودھری سے۔ جی مصدق، کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس؟ جی 3 مسلح ڈاکوؤں نے چیک نمبر 62 WOB میں شہری سے ڈکیتی کی واردات کی اور مزاحمت پر ڈاکوؤں نے فائرنگ کر کے طاہر ندیم نامی شخص کو مار ڈالا، جس پر شہریوں اور پولیس نے ڈاکوؤں کو تعاقب کیا تو ڈاکوؤں نے پولیس اور شہریوں پر فائرنگ کر دی، جس پر پولیس اور شہریوں نے بھی حق حفاظت خود اختیاری کے تحت جوابی فائرنگ کی۔ فائرنگ کے تبادلے کے دوران ایک ڈاکو اپنے ہی ساتھی کے فائرنگ سے ہلاک ہو گیا ہے، جبکہ باقی 2 فرار ہو گئے ہیں۔ ہلاک ملزم ڈاکو کی شناخت مرسی کے علاقہ مولا سرگانہ کے رہائشی ساجد کے نام سے ہوئی ہے، جو کہ متعدد مقدمات میں ریکارڈ یافتہ تھا۔ پولیس ترجمان کے مطابق ملزم کے قبضہ سے ٹھینگی کے علاقے سے چھینا گیا موٹر سائیکل اور پسٹل بھی برآمد ہو گیا ہے۔ جی بہت شکریہ اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ پاک پتن میں قومی انسداد پولیو مہم کا آغاز ہو گیا۔ 1514 ٹیمیں 5 روزہ مہم میں فرائض انجام دے رہی ہیں۔ پولیو مہم میں 3,52,000 بچوں کو پولیو کے بچاؤ کے قطرے پلائے گئے۔ مزید جانتے ہیں راؤ رمضان ایجاد سے۔ 5 روزہ پولیو مہم کے دوران ضلع پاک پتن کے 3,92,000 سے زائد بچوں کو پولیو کے قطرے پلائے جائیں گے۔ ڈپٹی کمشنر پاک پتن ماریا طارق کہتی ہیں کہ والدین اپنے بچوں کو عمر بھر کی معذوری سے بچانے کے لیے پولیو سے بچاؤ کے قطرے ضرور پلائیں۔ پولیو کے قطروں سے محرومی جو ہے وہ زندگی بھر کے لیے ایک معذوری کا سبب بنتی ہے، اور ہمیں اپنی بچوں کو، ہمارے آنے والی نسلوں کو، ہمارے قوم کے مماروں کو، جن کے ہاتھ میں ہمارے مستقبل فیوچر ہے ہماری قوم کا، اس سے ہمیں اس قوم کو، بچوں کو ہم نے پولیو کے قطرے پلا کے اس معذوری سے بچانا ہے۔ پولیو ٹیمیں دیہات اور پاک پتن کے مختلف علاقوں میں پیدل مسافت طے کر کے بچوں کو پولیو کے قطرے پلا رہی ہیں۔ ریورائن ایریا جہاں پہ ایکسیسیبل نہیں ہے وہاں پر اسپیشلی وزٹس کریں۔ ریورائن کے ایریا میں جہاں پر ایکسیسیبل نہیں ہے اور لوگوں کو مشکلات فیس کرنی پڑی ہے، اسپیشلی ہماری پولیو ٹیمز کو بھی بچوں کو ایکسیس کرنے میں، ادھر جا کر وزٹ کر کے بچوں کو پولیو کے قطرے پلا کے اس دفعہ ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ ہمارے ضلع میں ایک بھی بچہ پولیو کے قطرے سے محروم نہ۔ قومی انسداد پولیو مہم کے دوران محکمہ صحت کی 1,514 ٹیمیں گھر گھر جا کر پولیو کے بچاؤ کے قطرے پلا رہی ہیں۔ مہم کا مقصد کم عمر بچوں کو معذوری سے بچانا ہے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ راؤ رمضان اجاز، NTN نیوز، پاک پتن۔ ملک بھر کی طرح ننکانہ صاحب میں بھی 5 روزہ پولیو مہم جاری ہے۔ ڈپٹی کمشنر محمد تسلیم اختر راؤ نے DHQ اسپتال میں بچوں کو قطرے پلا کر مہم کا باقاعدہ افتتاح کر دیا۔ مزید تفصیلات جان لیتے ہیں میاں محمد اجمل شہزاد کی اس رپورٹ میں۔ ڈپٹی کمشنر محمد تسلیم اختر راؤ نے DHQ اسپتال میں بچوں کو قطرے پلا کر پولیو مہم کا باقاعدہ افتتاح کر دیا۔ پولیو مہم 7 فروری تک جاری رہے گی۔ 2,88,000 سے زائد بچوں کو پولیو کے قطرے پلائے جائیں گے۔ مجموعی طور پر 1198 ٹیمیں 5 سال سے کم عمر بچوں کو پولیو کے قطرے پلانے کا قومی فریضہ سر انجام دے رہی ہیں۔ ڈپٹی کمشنر نے پولیو ٹیموں کی کارکردگی کا جائزہ لینے کے لیے مختلف ٹرانزٹ پوائنٹ کا دورہ کیا۔ DC نے گھر گھر جا کر بچوں کے ہاتھوں پر نشانات بھی چیک کیے۔ اسی موقع پر ڈپٹی کمشنر نے کہا تینوں تحصیلوں میں اسسٹنٹ کمشنر سمیت دیگر افسران پولیو ٹیموں کی کڑی نگرانی کر رہے ہیں۔ والدین بچوں کو عمر بھر کی معذوری سے بچانے کے لیے پولیو ٹیموں کے ساتھ تعاون کریں۔ پولیو ٹیموں کی حفاظت کے لیے سیکورٹی کے فول پروف انتظامات کیے گئے ہیں۔ کیمرہ مین ٹیم کے ساتھ میاں محمد اجمل شہزاد، ڈسٹرکٹ رپورٹر NTN نیوز ننکانہ صاحب۔
खबर शामिल करते हैं आरिफ वाला से, जहां असिस्टेंट कमिश्नर मीर रुमान खलील ने पोलियो मुहिम का जायजा लेने के लिए शहर के मुख्तलिफ मकामात का दौरा किया। महकमा हेल्थ की टीमों की कारकर्दगी का जायजा भी लिया गया। मजीद देखते हैं आरिफ वाला से नुमाइंदा NTN न्यूज़ हाजी उमैर हसन की ये रिपोर्ट। आरिफ वाला में इस्दाद पोलियो मुहिम 7 फरवरी तक जारी रहेगी। असिस्टेंट कमिश्नर मीर रुमान खलील ने शहर भर के मुख्तलिफ मुकामात, बस स्टॉप समेत गली मोहल्लों में पहुंचकर फील्ड में मौजूद महकमा हेल्थ के अफसरान से मुलाकात की। डोर टू डोर महकमा हेल्थ की टीमों की जानब से कवर किए गए घरों की कारकर्दगी का जायजा लिया। असिस्टेंट कमिश्नर मीर रुमान खलील ने इस्दाद पोलियो मुहिम के हवाले से कहा, महकमा के हेल्थ की टीमें इस अमर को यकीनी बनाएं ताकि किसी भी मुकाम पर कोई बच्चा पोलियो से बचाव के कतरे पीने से रह न जाए और वालिदैन भी महकमा हेल्थ की टीमों से तावन करें। कैमरा टीम के साथ हाजी उमैर हसन, NTN न्यूज़, आरिफ वाला। मौसम सरमा के इख्तिताम में आने वाला बेर का फल विटामिन C और कैल्शियम से भरपूर होने के साथ साथ बहुत सी जानलेवा मरीजों से इलाज में भी मुफीद है। इस हवाले से बता रहे हैं रफीक अहमद अपनी इस रिपोर्ट में। जी बिल्कुल, भोली माई के बेर ने पाकिस्तान भर में अपनी धाक बिठा दी है। माई भोली के बेर खाने में मिठास और जायका में मुनफिद मकाम रखते हैं। शियाबाद के शहरियों ने माई भोली के बेर खरीदना शुरू कर दिए हैं। हमारे साथ एक शहरी मौजूद है, उनसे जानते हैं इस बार उनका क्या कहना है। जी बिल्कुल, ये माई भोली के जो बेर है ये बहुत मशहूर है, मारूफ है और बड़ी देर से हम यहाँ पे देखते हैं। ये छोटा सा बाग लगा हुआ है, यहाँ पे बाहर छोटे छोटे ढाबे पॉइंट बनाए हुए हैं, यहाँ पे शहरी रुकते हैं और ये फल खरीदते हैं, खुद भी खाते हैं, अपने बच्चों को भी और फैमिली को तोहफे तहाइफ में भी ये देते हैं। सेहत के लिए भी ये बहुत अच्छे हैं और लोगों के इनसे रोजगार भी वाबस्ता है। जी बिल्कुल, आपने शहरियों की बात सुनी, उनका कहना यही है खाने में मज़ेदार जायका मंद ये बेर हैं। विटामिन A, B, C भी इसमें पाई जाती है। अगर इक़सामात की बात की जाए तो खीरा, कराची, अजूबा बेर अपना मुनफिद मकाम रखते हैं। मुल्क भर की तरह बहावल नगर में भी 5 फरवरी यौम कश्मीर डे के मौके पर मरकजी मुस्लिम लीग की जानिब से कश्मीरी बहन भाइयों से इज़हार यकजहती के लिए रैली का इनेकाद किया गया। इंडिया का झंडा नजर आतिश कर दिया गया। मजीद जानते हैं बहावल नगर से अपने नुमाइंदे वसीम अख्तर लंगा से। जी वसीम, क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, मुल्क भर की तरह बहावल नगर में 5 फरवरी यौम यकजहती कश्मीर डे के हवाले से मनाया जा रहा है। इसी हवाले से मेरे साथ मरकजी मुस्लिम लीग के जनरल सेक्रेटरी हाफिज अमीर हमजा राफे मौजूद है। उनसे जानते हैं कि उनका आज के दिन के हवाले से क्या कहना है। जी सर, क्या कहेंगे? आज यौम यकजहती कश्मीर के मौका पर कश्मीर के शहदा को खराज अकीदत पेश करते हैं। कश्मीरियों की जद्दोजहद को सलाम पेश करते हैं कि 77 सालों से तमाम तर की कुर्बानियाँ देने के बावजूद वो आज भी साबित कदम है। ला इलाहा इल्लल्लाह के रिश्तों के साथ पाकिस्तान का हिस्सा बनना चाहते हैं। आज पाकिस्तानी कौम इस बात का ऐलान कर रही है कि कश्मीरियों के जज्बा हुर्रियत के साथ हैं, कश्मीर की आज़ादी तक अपना किरदार अदा करते रहेंगे इंशाल्लाह। पाकिस्तानी हुक्मरानों समेत आलमी बरादरी से मुतालबा करते हैं कि कश्मीरियों का जायज़ मुतालबा हक़ खुद अरादियत दिलवाने के लिए कश्मीरियों के साथ खड़े हों। हम इंशाल्लाह कश्मीर के साथ खड़े थे और खड़े रहेंगे। जी, ये थे हाफिज अमीर हमजा राफे जो हमें बता रहे थे कि पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग उस वक्त तक खड़ी है जब तक कश्मीरी बहन भाइयों को उनके हक़ खुद अरादियत नहीं मिल जाती। जी, बिहाड़ी में भी कश्मीरियों के साथ इज़हार यकजहती के लिए रैली निकाली गई। रैली में अंजुमन ताजुरान, सहाफ़ी बरादरी, सिविल सोसाइटी और मरकजी फलाही कमेटी के अरकान ने शिरकत की। रैली में मौजूद शुरका ने कश्मीरियों पर होने वाले जुल्म की भरपूर मज़म्मत की। हमारे नुमाइंदे मुसद्दिक चौधरी इस वक्त वहाँ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं क्या तफसीलात हैं। जी बिल्कुल, दीगर शहरों की तरह बिहाड़ी में भी कश्मीरियों के साथ इज़हार यकजहती के लिए रैली निकाली गई। रैली अंजुमन ताजरान, सिविल सोसाइटी, साफ़ी बरादरी और मरकजी फलाही कमेटी के अरकान ने शिरकत की। रैली में मौजूद शुरका ने कश्मीरियों पर होने वाले जुल्म की भरपूर मज़म्मत की है। मैं इस वक्त रैली में मौजूद हूँ और मेरे साथ कुछ शुरका मौजूद है। आइए उनसे मज़ीद बात करते हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आज हम बताना चाहते हैं कि जो हुकूमत वक्त है उसको चाहिए कि वो करारदादों के मुताबिक जो अमल करवाए और आलमी असम्बली में जाके कश्मीर के मसले को उठाए ताकि हमारे कश्मीरी भाइयों को आज़ादी मिल सके। अंजुमन ताजरान के सदर सईद अफजल साहब मौजूद है, आइए उनसे भी मज़ीद बात करते हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आज 5 फरवरी यौम कश्मीर है, तो इसी हवाले से लुधियाना में भी एक ज़बरदस्त रैली का एहतमाम किया गया है। तो ये तमाम जो शुरका है इनका एक ही मुतालबा है कि UNO की करारदादों के मुताबिक जो कश्मीर के ऊपर पाकिस्तान का मौक़िफ़ है या UNO का मौक़िफ़ है उसके उसी करारदादों के ऊपर या उसी मौक़िफ़ पर अमल दरामद करवाया जाए और आलमी बरादरी ये जो जुल्म हो रहा है कश्मीर के ऊपर उस पर मामला क्लियर करवाए। शुक्रिया।
जी बिल्कुल, शुरा का यही कहना है कि आलमी बरादरी को चाहिए जो कश्मीर पर जुल्म हो रहा है उस पर नोटिस लें, और दूसरे शुरा पर यह भी कहना है कि कश्मीर एक जन्नत है जो किसी काफिर को मिली है न मिलेगी। जी आपको बताएं कि आरिफ वाला में भी सरकारी सतह पर यौम यकजहती कश्मीर मनाया गया। असिस्टेंट कमिश्नर आरिफ वाला मीर रुमान खलील की क़यादत में रैली बल्दिया हॉल से निकाली गई। रैली में सरकारी मुलाजमीन, सियासी और समाजी शख्सियात, तलबा और शहरियों की कसीर तादाद ने शिरकत की। इख्तिताम पर मुल्क और कौम की सलामती के लिए दुआ भी करवाई गई। मजीद बता रहे हैं आरिफ वाला से हमारे नुमाइंदे हाजी उमैर हसन। जी उमैर, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, मुल्क के दीगर शहरों की तरह आरिफ वाला में भी सरकारी सतह पर यौम यकजहती कश्मीर मनाया जा रहा है। बल्दिया हाल से असिस्टेंट कमिश्नर मीर रुमान खलील की क़यादत में रैली निकाली गई है, जिसकी क़यादत असिस्टेंट कमिश्नर मीर रुमान खलील कर रहे हैं। मेरे साथ इस वक्त असिस्टेंट कमिश्नर मीर रुमान खलील मौजूद है। आइए उनसे जानते हैं उनका इस हवाला से क्या कहना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कश्मीर एक जन्नत बेनज़ीर है जो दुनिया में अपनी मिसाल आप है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वहाँ पे जो है अब पानी की बजाय खून की नदियाँ बह रही हैं, और इसकी वाहिद काज जो है वो हिंदुस्तान का जबर इस्तेसाल है जो सालों पे नहीं सदियों पे मुहित है। तो आज का मकसद जो है, आज की ये एक्टिविटी करने का पर्पज़ यही है कि कश्मीरी बहन भाइयों की काज को जो है सपोर्ट करें और उनको रियलाइज़ करवाएं। उनकी आज़ादी तक जो है हम उनके साथ अपनी हर मुमकिन मदद जो है जारी रखेंगे। थैंक यू जी। जैसा कि आपने असिस्टेंट कमिश्नर मीर रुमान खलील की गुफ्तगू सुनी, उनका कहना है कि कश्मीर पाकिस्तान की शाहरग है और इसको हासिल किए बगैर हम चैन से नहीं बैठेंगे। जी, पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग की जानिब से कश्मीरियों के साथ इजहार यकजहती के लिए यौम कश्मीर पर रैली निकाली गई। रैली में दीगर मजहबी जमातों ने भी शिरकत की है। कश्मीर की आज़ादी और मजलूम कश्मीरियों के हक में नारेबाजी की गई। पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग की ज़िलाई क़यादत ने अक़वाम मुत्तहिदा से कश्मीरियों की आज़ादी का मुतालबा भी किया। खानेवाल से देखते हैं अदनान रसूल की ये रिपोर्ट। पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग के ज़ेरे तमाम खानेवाल में कश्मीरियों से इज़हार यकजहती के लिए रैली निकाली, जिसका अख्ताम डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब खानेवाल के गेट पर हुआ। डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब के हाल में तकरीब मुनक्किद की गई। दीगर जमातों के कायदीन ने कश्मीरियों से इज़हार यकजहती के लिए पुरजोर आवाज़ उठाई और पाकिस्तान के हुक्मरानों को कश्मीर की हक़ खुद इरादियत और हिंदुओं के गासबाना कब्जे को ख़त्म करने के लिए आज़ादी के लिए मजबूत आवाज़ बनने पर जोर दिया। पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग के जनरल सेक्रेटरी हाफिज मुनव्वर गुजर ने कहा कि कश्मीर पाकिस्तान की शाहरग है, इसको हर सूरत छुड़ाएंगे। इस स्लोगन पर पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग ने 5 फरवरी को यौम यकजहती कश्मीर मनाने का भी ऐलान किया है। पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग के प्लेटफार्म पे आज खानेवाल के अंदर जो है अल्हम्दुलिल्लाह कश्मीरियों के साथ इज़हार यकजहती के लिए ये रैली निकाली गई है, और इस वक्त मेरे साथ तमाम जमातों के कायदीन मौजूद हैं, और हम सब का ये पाकिस्तान के हुक्मरानों से मुतालबा है, अक़वाम आलम से मुतालबा है कि कश्मीरियों की खुद इरादियत के ऊपर जो इस वक्त इतना बड़ा जो है वो कब्ज़ा किया गया, उनके ऊपर जुल्म सितम के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं। पाकिस्तान की शाहरग है। कश्मीर की आज़ादी दरअसल हमारे पाकिस्तानी मुसलमानों के अकीदे और ईमान का मसला है, क्योंकि हमारा रिश्ता उनके साथ ला इलाहा इल्लल्लाह है और ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। एक हमारा हुकूमत पाकिस्तान से मुतालबा है कि आलू प्याज की तिजारत पर तवज्जो देने की बजाय अपनी शहरग हिंदू बनिए के कब्ज़े से छुड़वाने के लिए तमाम तवानाइयाँ सर्फ करे। और उन्होंने अपने बयान में ये भी कहा कि कश्मीर नज़रियाती लिहाज से मुकम्मल आज़ाद हो चुका है। जुग्राफियाई लिहाज से आज़ाद करवाने के लिए पाकिस्तान के हुक्मरानों पर जोर देते हुए कहा कि कश्मीर पाकिस्तान की शहरग है। कैमरामैन टीम के साथ अदनान रसूल, डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर NDN न्यूज़ खानेवाल। यौम यकजहती कश्मीर पर मुल्क भर की तरह पाकपतन में भी रैली का इनेकाद किया गया, जिसमें शहरियों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। शहरियों ने हाथों में पाकिस्तान और कश्मीर के झंडे उठा रखे थे। पाकिस्तान कश्मीर जिंदाबाद के नारे भी लगाए। मजीद बता रहे हैं पाकपतन से हमारे नुमाइंदे राव रमजान अपनी इस रिपोर्ट में। कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। यौम यकजहती कश्मीर डे के मौका पर मुल्क भर की तरह पाकपतन में भी कश्मीरियों से इजहार यकजहती के लिए ज़िला इंतजामिया के अफसरान और शहरियों की तरफ से DC कम्प्लेक्स से बख्तियार काकी चौक तक रैली निकाली गई। इस साल की तरह हम इस साल भी यौम कश्मीर इसी अहद के साथ मनाते हैं कि कश्मीर पाकिस्तान का एक पार्ट है और यकीनन कश्मीर के जितने भी मुसलमान हैं हम उनके साथ हैं, और हर साल हम ये यौम कश्मीर मना के इस बात की तजदीद करते हैं कि हम उन कश्मीरी मुसलमानों के साथ हैं। उन पर जितने जुल्म ढाए जा रहे हैं, उनके साथ जितनी नाइंसाफ़ियाँ हुई जा रही है, उनमें हम उनके साथ देते हैं और ये दुआ करते हैं और साथ कोशिश करते हैं कि अल्लाह ताला उनको उनका हक दे।
हमें पाकिस्तान को कश्मीर का हिस्सा वापस मिल जाए और जो कि कश्मीरी मुसलमान की ख्वाहिश भी है। एहतजाजी रैली में शुरका ने हाथों में कश्मीरी परचम थामे हुए मुतालबा किया है कि कश्मीरियों पर ढाए गए मुजालिम फौरी बंद करे। आज यौम कश्मीर मनाया जा रहा है और इस जुल्म के पहाड़ों का मुकाबला करते हुए बहुत सारे कश्मीरी मुसलमानों ने कुर्बानियां दी। हम पाकिस्तानी कौम उन कुर्बानियों को ज़ाया नहीं होने देगी। अपने कश्मीरी बहन भाइयों के साथ कल भी खड़े थे, आज भी खड़े हैं। मुजाहिरीन ने खित्ते का अमन मसला कश्मीर के पुरअमन हल पर मशरूत कर दिया। शुरू ने अक़वाम मुत्तहिदा और आलमी इदारों से भारत पर दबाव बढ़ाने और कश्मीरियों को हक खुद अरादियत दिलाने का भी मुतालबा किया है। कश्मीर डे के मौके पर पूरी कौम का मुतालबा है कि कश्मीरियों पर ढाए जाने वाले मुजालिम को फौरी बंद किया जाए। कैमरा टीम के साथ राव रमजान इजाज, NTN न्यूज़, पाकपतन। यौम यकजहती कश्मीर के हवाले से तहसील साहिवाल इंतजामिया के ज़िले एहतमाम अज़ीमुशान रैली का इनेकाद किया गया। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन एक तकरीब जारी है। इस वक्त महर उसामा इस्माइल वहाँ मौजूद हैं। उसामा, क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, मुल्क के दीगर शहरों की तरह सरगोदा की तहसील साहिवाल में भी यौम यकजहती कश्मीर के हवाले से रैली निकाली गई है। इस टाइम मेरे साथ असिस्टेंट कमिश्नर साहिवाल मोहम्मद नवाज सुलैरिया मौजूद है। इस हवाले से वो क्या कहना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, हर साल की तरह हम इस साल भी कश्मीरियों के साथ इज़हार यौम यकजहती का दिन जो है वो मना रहे हैं। इसका मकसद ये है कि हम इंटरनेशनल लेवल पे दुनिया को ये बता सकें कि जी कश्मीर के साथ हमारा जो है वो बड़ा गहरा तल्लक है और हम ये चाहते हैं कि इंटरनेशनल लेवल पे जो अक़वाम मुत्तहिदा ने करारदादें पास की थी उसके मुताबिक कश्मीरियों का उनका हक़ खुद अरादियत जो है वो दिलाया जाए और कश्मीरियों पर जो गासबाना कब्ज़ा किया हुआ हिंदुस्तान ने उनको आज़ादी दिलवाई जा सके। बहुत शुक्रिया। जी बिल्कुल, जैसे कि असिस्टेंट कमिश्नर साहिवाल का कहना है कि कश्मीर जब तक आज़ाद नहीं हो जाता, जब उस टाइम तक जो रैलियां हैं वो निकाली जाएंगी। जी। और मुल्क भर की तरह चीचा वतनी में भी यौम यकजहती कश्मीर पुरअमन तरीके से मनाया जा रहा है। बल्दिया की जानिब से रैली भी निकाली गई जहां पर अवाम के कसीर तादाद ने शिरकत की है। इस हवाले से मजीद बताएंगे हमारे नुमाइंदे जुनेद मलिक। जी जुनेद, क्या तफसीलात हैं? हाँ जी बिल्कुल, मुल्क भर की तरह चीचा वतनी में भी यौम कश्मीर यकजहती जो है वो नहायत पुरअमन तरीके से मनाया जा रहा है और इस हवाले से चीचा वतनी बल्दिया हाल में एक सेमिनार भी मुनक्कद किया गया और असिस्टेंट कमिश्नर चीचा वतनी वहीद हसन गोंदल की क़यादत में एक रैली का भी एहतमाम किया गया। मेरे साथ इस वक्त चीचा वतनी असिस्टेंट कमिश्नर वहीद हसन गोंदल साहब मौजूद है। मज़ीद उनसे जानते हैं उनका आज के दिन के हवाले से क्या कहना है। जी, आज कश्मीर सॉलिडारिटी डे के हवाले से जितने भी प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किए गए हैं, वो रैली है, सेमिनार है, दुआया तकरीब है, इस सब का मकसद बेसिकली कश्मीर के साथ इजहार यकजहती है कि हम उनके साथ खड़े हैं और हर फोरम पे हम उनकी आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं और जो कश्मीरियों के साथ जुल्म जबर इंडिया 1948 से ऑनवर्ड किए जा रहा है, हम उसको कंडेम करते हैं, उसकी मज़म्मत करते हैं और अपनी कश्मीरियों के साथ खड़े हैं उनकी आवाज़ बुलंद करने में कि जो यूनाइटेड नेशन ने रेजोल्यूशंस पास की हैं, जो वादा किया है उसके मुताबिक उसका वो सलूशन करें। जी बिल्कुल, आपने चीचा वतनी असिस्टेंट कमिश्नर वहीद हसन गोंदल की गुफ्तगू को सुना। उनका कहना था कि आज जो भी सेमिनार और रैली और दुआया तकरीब का जो इनकाद किया गया है वो कश्मीरियों से जो है वो इज़हार यकजहती है और जो कश्मीरियों पर जुल्म हो रहे हैं हम उनकी पुरजोर जो है वो मज़म्मत करते हैं। जी बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। दुनिया भर की तरह शुजाबाद में भी यौम यकजहती कश्मीर के हवाले से सेमिनार और रैली निकाली गई जिसमें सिविल सोसाइटी, सहाफ़ी बरादरी, ताजिरान और शहरियों की कसीर तादाद ने शिरकत की। रैली की क़यादत असिस्टेंट कमिश्नर सूरत मुबशिर ने की। मज़ीद जानते हैं रफ़ीक अहमद की इस रिपोर्ट में। मजलूम कश्मीरियों से इजहार यकजहती के लिए मुल्क भर की तरह म्यूनसिपल कमेटी शुजाबाद के ज़रिए तमाम सेमिनार और वाक का इनेकाद किया गया। दफ्तर म्यूनसिपल कमेटी से अल्लाहू चौक तक रैली निकाली गई जिसकी क़यादत असिस्टेंट कमिश्नर सूरत मुबशिर, चीफ ऑफिसर उमर मुख्तियार ने की। रैली में शुरा ने कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, कश्मीरियों से इजहार यकजहती के लिए नारे लगाए। रैली के इख्तिताम पर असिस्टेंट कमिश्नर सूरत मुबशिर ने कहा कि कश्मीरी कायदीन आवाम की कुर्बानियां वाएगा नहीं जाएंगी। शोहदा को सलाम पेश करते हैं। पाकिस्तान के 22 करोड़ आवाम के दिल कश्मीरियों के साथ धड़कते हैं। 5 फरवरी के दिन हम लोग यौम यकजहती कश्मीर मना रहे हैं और हर साल की तरह इस साल भी भरपूर तरीके से मनाया गया है। इस हवाले से मैं ये कहना चाहूँगी कि हम लोग कश्मीरी भाइयों की जद्दोजहद में उनके साथ खड़े हैं, हम उनकी कुर्बानियों को जाने नहीं देंगे इस तरह से। और
उसके अलावा मैं ये कहना चाहूँगी कि जिस तरह से कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा था कि कश्मीर पाकिस्तान की शहर रख गए, तो उस पर हम लोग कायम रहेंगे और इंशाल्लाह कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। रैली में इंतजामी दावों, सिविल सोसाइटी, अंजुमन ताजरान, साथियों और शहरियों की बड़ी तादाद शरीक हुई। कश्मीरियों की कुर्बानी लाजवाल और जदोजहद आज़ादी की तवील दास्तान है। मोदी सरकार के 370 आर्टिकल पर मुजम्मत करते हैं। मजलूम कश्मीरियों की आलमी तंजीम UN करारदाद के मुताबिक हमायत करे और जुल्म बर्बरियत बंद की जाए। कैमरा टीम के हमरा रफीक अहमद, NDN न्यूज, शुजाबाद। उधर भवाना में भी 5 फरवरी यौम यकजहती कश्मीर के हवाले से तहसील इंतजामिया की तरफ से रैली निकाली गई। रैली की क़यादत असिस्टेंट कमिश्नर भवाना मैडम सादिया जमाल ने की। रैली में रेस्क्यू 1122, पंजाब पुलिस, महकमा एजुकेशन, शहरियों, सिविल सोसाइटी ने कसीर तादाद में शिरकत की है। इस हवाले से मजीद बात करते हैं मोहम्मद अफजल भवाना से। जी मोहम्मद अफजल, क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, मुल्क भर की तरह बाना में भी आज 5 फरवरी यौम यकजहती कश्मीर के हवाले से एक रैली निकाली गई है। रैली असिस्टेंट कमिश्नर हाफिज़ बाना से निकाली गई। रैली की क़यादत असिस्टेंट कमिश्नर बाना मैडम सादिया जमाल ने की है। रैली में रेस्क्यू 11 बाई, ट्रैफिक पुलिस, पंजाब पुलिस, महकमा एजुकेशन और शहरियों की कसीर तादाद जो है वो शरीक हुई है। हमारे साथ असिस्टेंट कमिश्नर बाना मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। मैडम बताइए कि इस रैली के हवाले से। जैसे कि मैं पहले भी अर्ज़ कर चुकी हूँ जी, हमारी इस रैली का जो बुनियादी मकसद है वो यही है कि हम कश्मीरी आवाम के साथ इज़हार यकजहती करते हैं। हम उन्हें ये यकीन दिलाते हैं कि उनकी जद्दोजहद में हम उनके साथ खड़े हैं और हम अक़वाम आलम से और ख़ास तौर पर अक़वाम मुत्तहिदा से ये मुतालबा करते हैं कि वो कश्मीर की करारदादों को जो है उनका एहतराम करते हुए उनकी आज़ादी के लिए जो है अपना किरदार अदा करें। जी बिल्कुल, आपने असिस्टेंट कमिश्नर बाना मैडम सादिया जमाल की बात सुनी है। इनका ये कहना है कि रैली का मकसद कश्मीरी बहन भाइयों के साथ इज़हार यकजहती करना है। कश्मीर हमारी शाह रग है, हम कश्मीरी बहन भाइयों के शाना बशाना खड़े हैं। जी यहाँ आपको बताएं कि 5 फरवरी यौम यकजहती कश्मीर के मौके पर असिस्टेंट कमिश्नर ऑफिस से कलमा चौक तक एहतजाजी रैली निकाली गई, जिसमें सिविल सोसाइटी के मेंबरान समेत सरकारी अफसरान की कसीर तादाद में शिरकत। मजीद जानते हैं असद राजपूत से। आज बिल्कुल 5 फरवरी यौम यकजहती कश्मीर के मौके पर जो है वो कमालिया भर में एहतजाजी रैलियों का सिलसिला जारी है। इस वक्त मेरे साथ SHO सिटी जीवन खान साहब मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं जो यहाँ पुलिस के अमरा जो है वो एहतजाज में शरीक हैं। सर, क्या कहेंगे, कश्मीर की आज़ादी किस लिए ज़रूरी, आप बताएं क्या कहेंगे? जी अस्सलाम वालेकुम। आज यौम यकजहती कश्मीर 5 फरवरी है, तो इस हवाले से पूरे शहर ने भरपूर रैलियाँ निकाली और सिक्योरिटी के हवाले से हमने भरपूर सिक्योरिटी दी। कश्मीर हमारी शाह रग है और इसमें जो है ना, जो हक़ खुद इरादियत कश्मीरियाँ हैं वो ज़रूर उन्हें मिलना चाहिए और हमारी भी ख्वाहिश है कि हक़ खुद इरादियत को मलूज़ खातिर रखा जाए और आज़ादी जो कश्मीर है वो बिल्कुल ज़रूरी है। थैंक यू। आज बिल्कुल जैसा कि आप इनकी बात सुन रहे थे, इनका भी यही कहना है कि कश्मीर को उसका हक मिलना चाहिए। तमाम मुसलमान मुत्तहद होकर कश्मीर के इशू पर जो आवाज़ उठाएं और कश्मीर को जालिम इंडिया से, उसके चुंगल से आज़ाद करवाएं। जी बहुत शुक्रिया शिरकत मजीद के लिए। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए हमारे साथ रहिए।